disasters. In recent years, there has been a conscious effort from academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public. In recent years, there has been a conscious effort from academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public. In recent years, there has been a conscious effort from academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public. In recent years, there has been a conscious effort from academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public. In recent years, there has been a conscious effort from academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public. In recent years, there has been a conscious effort from academia. Hello. Hello. I can hear echo of. Maria, are you there, please? मेरा मोबाइल नहीं देखो I request everyone to kindly mute your mic, and what I'm going to do, I'm going to mute everybody so that only the speaker could turn it on. It's really disturbing. Please understand. I have muted everybody. Yeah. Please go ahead. And the event is also being live streamed on the YouTube. Akansha, unmute yourself. Akansha, please unmute yourself. Thank you. Thank you for controlling the noise disturbance, sir. So yeah, so welcome you all. And what I was saying is about that how in recent years there has been a conscious effort from the academia to deconstruct the notion of natural disasters, to bring it to the notice of policymakers and public that hazards are natural, disasters are not, because the prevailing vulnerabilities, risk, and extent of exposure in our society turns a hazard to a disaster. Nature never intends to bring disasters to human society. It's anthropogenic factors, us humans, and our idea of development and settlement that makes a natural hazard, disaster. Our 5 speakers today would throw more light on the subject. So let me quickly introduce you to them. We will start with our honorary chief editor, Anil Kumar Sinha, sir. Sir is a retired IAS officer and has more than 40 years of work experience in disaster management. So is also the founder, vice chairman of PSDMA, founder, executive editor, director of National Institute of Disaster Management of India, and founder program advisor of UNDP. No Disasters magazine, as you know, is Sir's idea, and as he has dedicated his entire career to bringing disaster management in common people's realm, and truly finds ways to reach to the last mile. Sir, he constantly motivates us and brings ideas that how can we simplify and make efforts in reaching to the last mile. Thank you, sir, for being this inspiration and guiding No Disasters team. Then we are fortunate to have Dinesh Misra sir here with us today in this event. Many years ago, when the slogan "disasters are not natural" has not become this popular, Dinesh Misra sir's one EPW article, "Living with Floods," shook the entire sustainable development industry, and we started re-looking at the notion of floods as disasters. Sir has written volumes, recording hydrobureaucracy, and he's another 2 volumes of ethnographic account of floods are in pipeline. They are very soon going to be published. And please read him. That's a whole lot of perspective. And since 1992, Dinesh sir has been working in the Ganga and Brahmaputra river basin in Bihar, where he has also created an umbrella network, the Bar Mukti Andolan, of over 700 rural groups of flood historians. Sir is mounting a grassroots movement that challenges the current top-heavy flood control policy. And instead of relying on big dams and embankments,
which have become silt-laden time bomb, sending tidal waves of water and routinely destroy whole villages. Dinesh sir opens doors to local leaders and gives them tools for managing and coping with floods. Thank you very much, Dinesh sir, for making time for this event, and we are grateful to you for your efforts. Then Dr. Sriza Nair is here. Ma'am is currently working as Fellow Earth Sciences and Climate Change with the Energy and Resource Institute. She is also visiting faculty at Terry School of Advanced Studies since 2018. Ma'am has more than 23 years of experience in the area of DRR and institutional development. Dr. Nair has this 25, more than 25 research papers in national and international journals, authored 8 training modules as faculty when she was faculty at NIDM during 2007 and 2015, where she was also the editor of NIDM's newsletter Tiding and Disasters and Development Journal during 2007 and 15. A very warm welcome to you, Sriza ma'am. Then we will hear about the stories of hope from grassroots, Eastern UP and around somewhere around Bahraich and Gonda, from and how the innovative ideas of our next speaker, Dhruva Kumar, is changing people's lives by literally translating flood resilience building in live examples. For last 40 years, Dhruv Kumar sir has been working for the sustainable development, and since 2003, he is working with Panchasheel Development Trust for rehabilitation of displaced community due to changing course of river Ghagara and Rapti in Tarai regions. His efforts have been duly recognized by the Disaster Management Authority in Uttar Pradesh, and we really feel inspired by your work, Dhruv sir. Can't wait to hear you. And then today's last speaker would be Aparajita Kumari, who has been working on school safety, community-based, and children-centric DRR practices. A teacher by core profession, ma'am has been state-level master trainer for school safety program in Bihar, State Disaster Management Authority, and she is also part of the program called Safe Saturday on Doordarshan Bihar channel. This program is aired every Saturday at 9 to 10 a.m. So I think ma'am has just got free from that program. Ma'am, as we discussed, children are integral part of DRR, and no disasters not only dedicates pages to the creative entries of children in its every issue, but the magazine has already brought 2 special issues on children and DRR. And again, the upcoming issue in November is a special issue done by all, done all by children. And so it would be nice hearing you on your DRR works with children. And thank you very much for being here today. And again, a warm welcome to you. Now, let me quickly introduce you to Colonel Professor Sanjay Srivastav, who has kindly agreed to moderate today's session. Sir is the convener of Lightning Resilient India campaign, a joint initiative of CropSea and India Meteorological Department, Government of India. And Sir also leads CropSea. Sir has recently joined Terry University as Professor of Practice, where Dr. Sriza is also there. With this, over to you, Sanjay sir, and let's hear our speakers today. Thank you so much, Akansha, for lovely background where you are sitting and the introduction. It's lovely Saturday morning here at Delhi, scorchy with little bit of winter setting in. So it's a serene environment around. We would start the event with our revered, respected Sri Anil Sinha sir with his deliberation. I will not take your time more, and I'll straight away request Anil Sinha sir to bless us with his deliberations. Over to you, sir. Sir, kindly unmute yourself. Okay, I've done. And one more thing, sir, the event is also being live streamed on YouTube, sir. I saw that. Yeah, and I'll
On my phone, I will try to connect once I finish to see there also. Thank you, Sanjay. Very valuable support from you. And thank you, Akanksha. Nari Vandan, Nari Shakti जो है, that is in display right from the beginning. मुझसे बहुत अच्छे तरीके से तुमने आज इंट्रोड्यूस किया. वैसे तुम्हारी राजधानी क्या, वो जो भी एक्सप्रेस है ना जापान में जो चलती है, उतना तेज तुम बोलती हो, लेकिन आज बहुत ही अच्छा मॉडरेट, तो इससे सारी बातें तुम्हारी बहुत अच्छे से समझ. थैंक यू सो मच. मैं इसमें Thank you. मैं कुछ जो विशेष हमारे मित्र हैं, कुछ लोग अनम्यूटेड हैं, काइंडली सबको म्यूट कर दो भाई, स्पीकर के अलावा. प्रमोद कुमार, रजनी श्रीवास्तव, क्योंकि वो मणिकांत, ये सब बाद में फिर सर आई विल रिक्वेस्ट आप अनम्यूट कर ले अपने आप को, मैंने बाकी सबको अनम्यूट कर दिया. ओके, थैंक यू. मैं इसमें तो सबसे पहले पुष्टि जी को नमस्कार करता हूँ. पुष्टि जी इज वन ऑफ द, and I'm perhaps understating, you can't get a better professional with a literally overview, broad overview combined with intimate details in the developmental sector, you see. And someday we must have just hear him about his experiences. That will be very good for all of us. Secondly, Gauri Shankar, a long-time friend, more than 20 years. We were together in Japan. Now he's in Australia, but he joins every time. Thank you, Dinesh Mishra sir. आप आए तो बहुत ही अच्छा लगता है. मैं इसके डॉक्टर बाला प्रसाद हैं हम लोग के बीच में, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हैं, और सेक्रेटरी रह चुके हैं आयुष मिनिस्ट्री में. जब आईएएस का इंटरव्यू होता है तो हम लोग काफी साथ में काम करते हैं बोर्ड्स में. इसके बाद में जो कुछ यंग बच्चे हैं, सखी है दुमका से, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, मैंने देखा थापा वगैरह का नाम, फ्रॉम एनआईडीएम. आसिफ है जो कि यंग हैं, हमारे पहले एडिटर थे, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है. रजनी श्रीवास्तव जी का सपोर्ट रहता है. एक सरस्वती मैडम है जो कि हमारे कलीग थे, मेरे पीए थे पीएसडीएमए प्राधिकरण में, और मणिकांत जी ने पीए में रह करके, ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया, इग्नू से बहुत अच्छे से किया, और उसके बाद वो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे औरंगाबाद में. तो उनकी जो मैडम सरस्वती जी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है. थैंक यू मैडम. अभय श्रीवास्तव जो कि हेड कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट में, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. दिव्या गुप्ता फ्रॉम स्पीयर. संजय सिन्हा रिटायर्ड आईपीएस हैं. राजन सिन्हा पटना में, ही इज अ ग्रेट, अनदर डेवलपमेंट सेक्टर में उनका बहुत अच्छा काम है. अगर किसी का नाम छूट रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा, बट समय की भी पाबंदी है, और कुछ लोगों को मैं रिकग्नाइज करने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ. तो अब ये जो टॉपिक चुना गया है, हाउ नेचुरल आर नेचुरल डिजास्टर्स. द क्वेश्चन इज, what is wrong with the term natural disasters? Natural disaster term has been used, since ever, since I have been in the field last 30 years or so. But we find that there is something wrong with this term. You see. And what is wrong? Because ये term बहुत ही easily use होता है. You see, it is actually, अगर हम disasters को एनालाइज करें, तो ये हम जो डिसीजंस कर लेते हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा, it is the decisions which we make which turns a hazard into a disaster. Hazards can be natural. बहुत से hazards हैं जो कि natural है, natural phenomena है. बहुत से hazards हैं जो कि natural नहीं है, वो man made, जो डेवलपमेंट में अगर हम कहते हैं, तो जैसे हमारे पास, आपके पास, सबके पास ये फोन है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन ये हैजर्ड भी है. मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समझते हैं, आज सब लोग समझते हैं, चाहे हम बच्चों को ले लें चाहे बड़ों को ले लें, बट ये टेक्नोलॉजिकल हैजर्ड भी है. तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हैजर्ड से?
डिजास्टर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज आवर डिसीजन एज टू हाउ मच वी यूज, हाउ वी यूज, फॉर व्हाट पर्पस वी यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू सी, नाउ हैजर्ड्स आर इनएविटेबल, ये हम जानते हैं, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, दैट इज नॉट इनएविटेबल, दैट वेरीज। इनएविटेबल मतलब कि होना ही है, और सब पे बराबर होना है, सब सेगमेंट पे, ऐसा भी नहीं है। इट इज रियली डिफरेंट, यू सी। So hazard becomes a disaster once it affects the society or the stakeholders. There are different sections of the society who have different vulnerabilities. कहीं पर भी जो बिल्कुल से बच्चे, छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो हैं, newborn babies, they are most vulnerable. We know, again, I am not explaining. Pregnant mothers may be most vulnerable. Elderly people, sick people, people with special abilities, they may be more vulnerable. Therefore, a hazard can easily turn into a disaster in their case, you see. So we need to recognize this. So therefore, I think we need to move away from this term, which is natural disasters. I think ये हम लोग को continuously try करना चाहिए. I do not know what the government can do or the NDMA or NIDM can do, but as a part of the society, since we are working more with the society and entirely with the society, तो हम लोग को ये term natural disaster से जरा दूर, we need to really move away. क्यों? क्योंकि this ignores and overlooks the role which the humans play. हम लोग जो प्ले करते हैं और जिससे कारण डिजास्टर होता है, अगर आप नेचुरल कहते रहेंगे तो ह्यूमन का जो रोल है उसको हम उसे ओवरलुक कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस टर्म से अलग हटें। दूसरी चीज, ये दिस वर्ड टेक्स अवे सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, कल्चरल, कंटेक्चुअल जो रीजंस और फैक्टर्स होते हैं, उनको भी फिर ये पीछे डाल देता है। Therefore, you see, natural disaster कहना, सब चीज को उसमें ग्रुप कर देना, आई थिंक वो बहुत ही वो ठीक नहीं है उसे। एंड क्योंकि ये जो सोशल इनजस्टिसेज हैं, सोशल इनइक्वालिटीज, डिफरेंट सेफ्टी नेटवर्क्स हैं, जिससे कारण इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, इन सब चीजों को ये नकारता है, इसलिए ये चीज ठीक नहीं है। Therefore, there is need to get the term right. व्हाट कैन बी द राइट टर्म, वो मेरे पास अभी इमीडिएट आंसर नहीं है, बट इससे इसलिए भी अलग होना है कि ये हमारे रिस्क के परसेप्शन को भी चेंज कर देता है। जैसा मैंने अभी बताया कि रिस्क का परसेप्शन एंड असेसमेंट एंड एनालिसिस डिफरेंट, अगर कैटेगरीज के लोगों को ले, बच्चे से लेकर महिलाएं तक, एल्डरली तक, तो रिस्क के परसेप्शन एंड रिस्क का असेसमेंट डिफरेंट होगा। बट एक बार हम नेचुरल डिजास्टर में डाल देते हैं तो फिर वो रिस्क के परसेप्शन भी जो है, डिफरेंशिएशन, वो भी मिक्सअप हो जाता है। इसलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क है उसको ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। Therefore, there are so many reasons which I am giving one by one. Therefore, disasters are not natural and neither is climate change. It is important to bring climate change को हम लोग को डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये मेंशन कर रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस इज ए ह्यूमन क्राइसिस, दैट वी नो। अगेन हम अभी नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, बिकॉज इस पर हम इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू सी अभी और भी स्पीकर्स हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। एंड देयरफॉर लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग देयर इज नो सच थिंग एज नेचुरल डिजास्टर्स, because natural causes are not entirely diverse from the social usage. So naturalness of disaster camouflages a lot of these things. Therefore, let us be clear that we have to move away and we will not go ahead with wide and loose use of this term natural disasters. Now, let me end by saying कि हमारा जो मैगजीन है नो डिजास्टर्स, इसकी जो अभी कॉपी है वो रिलीज भी की जाएगी। हम लोग सब इसको मिल करके रिलीज करेंगे। इसमें हमारा एक ही एम है, मेकिंग डिजास्टर्स एवरीवन्स बिजनेस। क्योंकि डिजास्टर हर किसी को अफेक्ट करता है, इसलिए ये चर्चा हर लेवल पर पहुंचनी जरूरी है। तो देयरफॉर दैट इज आवर मोटो, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। बट अगर हम हर की बात करते हैं तो एक महिला पार्टिसिपेंट हमारी एक है कलीग, उनकी मदर ने ये बताया था, याद दिलाया था
कि अगर आप हर एक की बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात मत कीजिए, आप हिंदी को इमीडिएटली लाइए। और हम लोग की ये रियलाइजेशन हुआ कि हिंदी तो लाएं, लेकिन उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस को भी इसमें लाना जरूरी है। बिहार स्कूल सेफ्टी की बात हुई, बिहार स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट की। अभी बच्चों का इशू आ रहा है जो नवंबर में होगा। हम समझते हैं कि बिहार स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट में जो सेफ सैटरडे इत्यादि बहुत सी चीजें हो रही हैं, उस पर हम लोग एक स्पेशल स्टोरी करें। बाद में बिहार स्कूल सेफ्टी पर या जो ऐसे स्कूल सेफ्टी हैं, हम समझते हैं उस पर एक पूरा का पूरा इशू करना चाहिए। संजय जी और आकांक्षा हमारी टीम नोट कर लें। ये मुझे आइडिया आ रहा है कि स्कूल सेफ्टी पर विच इज अदर एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, बट उस पर एक हम अलग इशू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं एक बार फिर आप सबों को जो ज्वाइन किए हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो कलीग है वंदना चौहान, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है कि एनएसएस एनसीसी के बच्चों को, स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों को जो जीविका कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिहार में लाखों में उसमें मेंबर्स हैं, और इसी तरीके का कुटुम्बश्री कार्यक्रम है केरल में। असल में हर राज्य में है, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। हम उन महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि आज थैंक्स टू वंदना चौहान काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन हम ही ने शायद क्रिएट कर दिया था, तो मैं समझता हूँ कि 11:30 तक काफ़ी लोग इसमें फिर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एक बार पुनः आप सबों को शुक्रिया, और मैं अब आप सबों की बात सुनना चाहता हूँ। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। मैं आगे बढ़ते हुए अभी अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिनेश मिश्रा सर से, जो कि एक अशोका फेलो हैं, कन्वेनर हैं, बाढ़ मुक्ति अभियान और डायरेक्टर है मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जमशेदपुर के। He is a legendary figure and it's always a delight to hear him. I'll request Dinesh Mishra sir for your words of wisdom sir for us. धन्यवाद कर्नल साहब, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं जितने भी यहाँ हमारे मौजूदा लोग हैं, कि मुझे ये मौका मिलता है बीच बीच में आप लोगों से बातचीत करने का, और डिसास्टर को समझने और समझाने का। समझाना तो बहुत नहीं हो पाता है, लेकिन समझना ज़्यादा होता है। पहली बात जो मैं क्षमा के मांगने के साथ कहूँगा कि मैं आज के इस वक्तव्य के लिए तैयार नहीं था उतनी अच्छी तरह से जितना कि मैं आमतौर पर एक्सटेम्पोर बोल सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। शायद मैं समय भी उतना न ले सकूँ और वो बाकी वक्ताओं को जाएगा। लेकिन इसको देखने का, जिसको हम लोग डिज़ास्टर कहते हैं, पता नहीं हिंदी में आपदा कहते हैं शायद, आपदा प्रबंधन करते हैं हम लोग, मैनेज करते हैं उसको। ये एक बड़ा अजीब सा टर्म है, और जो हमको भुक्तभोगी क्षेत्रों से जो इसका रिस्पांस मिलता है, वो मुझे लगता है कभी कभी हमारे यहाँ छलकता नहीं है, क्योंकि जो भोगता है वो इन चीज़ों को हमसे कहीं ज़्यादा समझता है। और हमारी ये कमजोरी होती है या हमारा ये अहंकार है, हम उनके पास जाते हैं सिखाने के लिए, उनसे सीखने के लिए कम जाते हैं, और जो हमारे अपने जो विचार हैं उन पर एक तरह से ढालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ वार्तालाप बहुत ज़रूरी है, जो कि सीधे ज़मीन पर जुड़े हुए हैं, और उन्होंने किसी भी डिसास्टर जिसको कह लें या किसी भी विपत्ति को झेला है, वो किस तरह से करते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, हमको अवसर मिलता है कि हम ज़्यादा एक विस्तीर्ण क्षेत्र पर उस सारी चीज़ को समझने का मौका हमको मिलता है, जो कि फील्ड में रहने वाले को या भुक्तभोगी को नहीं मिलता है, और वो हमारे शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और अगर अंग्रेज़ी में कह दिया तो वो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं कि वहाँ होना चाहिए, और एक जो डायलॉग है, जो वार्ता है, वो सीधे उन लोगों से स्थापित होनी चाहिए और उनके वक्तव्य सुने जाएं। मैं
जो कुछ भी काम किया, कभी प्लस वाटर पर काम किया, कभी माइनस वाटर पर काम किया, यानी कभी बाढ़ पर काम किया, कभी सूखे पर। तो वो चीज़ें मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे समाज में शायद कुछ कुछ कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं आज सूखे से शुरू करूं, कि सूखे की जो बात होती है हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैंने देखा है कि वो लोग बात करते हैं कि रोहिणी में पानी नहीं हुआ। अब ये रोहिणी क्या होता है, हम में से कितने को पता है, और इंजीनियर्स को खासकर, कि वो रोहिणी क्या होता है। तो वो जब बोलता है कि नहीं, जून महीने का अंत में बारिश हो जानी चाहिए, तो वो जब वो कहता है कि जून महीने के अंत में बारिश हो जानी चाहिए, तो वो जिसको, जो भुक्तभोगी है या जिसके कल्याण की हम लोग बात करते हैं, उसके दिमाग में वो जून महीना का अंत समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमको रोहिणी नहीं मालूम है क्या होती है, और उसको जून का दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता नहीं मालूम है। इस दीवार को हम लोग कैसे हटाएंगे? जहाँ तक मेरा अध्ययन है, इन दोनों के बीच में, यानी जून का महीना का दूसरा पखवाड़ा और रोहिणी नक्षत्र का की शुरुआत, इन दोनों के बीच में जो इंटरप्रेटर होता है, वो या तो समाजकर्मी होता है, अगर बड़ी खुशी की बात है अगर वो समाजकर्मी ही रह जाए, लेकिन आमतौर पर वो राजनीतिज्ञ हो जाता है। राजनीतिज्ञ जो है वो दोनों की भाषाएं समझता है, वो जून का महीना भी जानता है और वो रोहिणी भी जानता है। अब दोनों पक्ष उसके कब्जे में हो जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है या करना चाहता है या करवाना चाहता है, और वो अपनी, यानी समाज की समस्या को किस रूप में योजनाकारों के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि उनका सीधा डायलॉग बहुत कम होता है भुक्तभोगी से। तो ये मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी कमी है हम लोगों के बीच में। हम अपनी परिभाषाएं करते हैं और वो अपनी परिभाषा के अनुरूप उसको देखता है। मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ। मैं एक बार कोसी के तटबंधों के बीच में, कुछ गांवों के बीच में गया था, और वहाँ एक चापाकल हम लोग बोलते हैं गांव में, और उसको हैंड पंप बोलते हैं, जो पानी ये निकालने के लिए होता है। तो उसको, जो पाइप था वो काफ़ी कुछ ज़मीन के ऊपर था। मैंने कहा भाई ये क्या है, इससे आपको पानी मिलता है? तो बोलते हैं हाँ साहब, मिल तो जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब उसका करीब 2 पुरुष खड़े हो जाएं तब तो ऊपर से पानी निकाल सकेंगे, तो ये हमारे लिए बेकार है। तो हमने उनके पीने के पानी के लिए हैंडपम्प का जुगाड़ बैठा दिया, और वो मिट्टी काट के ले गया और वो टंग गया वहाँ। फिर मैंने कहा कि आप लोग ये जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, थोड़ा पीछे हट करके नहीं बसते? आप तटबंध के बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए? बोलते हैं साहब, हमारा घर और ज़मीन और हमारे पुरखे सब यहीं रह चुके हैं, तो हम ये तो इस जगह छोड़ करके नहीं जाएंगे, और हम लोग इस जगह को बदलते रहते हैं, इसमें कोई हमको परेशानी भी नहीं होती है। और वो कहता है कि हमको ये जो झाला लगता है ना दीवार में, यानी अगर छप्पर डालेंगे बांस और फूस का, तो उसमें वो मकड़ी के जाले लगते हैं, चूल्हा जलता है तो वो उसको काला बनाता है। तो बोलते हैं ये जो जाला लगता है ना, आप लोगों के घरों में लगता होगा, हमारी झोपड़ी में जाला नहीं लगता। वो जाला लगने के पहले ही हमको नदी यहाँ से हटा देती, हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, और यहाँ बांस मिल जाता है, फूस मिल जाता है, उसमें हम अपना घर बना लेते हैं, फिर रहना शुरू करते हैं। फिर वो अगली बाढ़ आएगी तो उसमें वो फिर ले जाएगी। तो हमारे लिए तो ये रूटीन की बात है। और जब हम जाते हैं वहाँ तो रूटीन तो हमको समझ में नहीं आता, उसको लोकल जो संसाधन है वो भी हमारे उसके समझ में नहीं आते हैं कि वो क्या क्या चीज़ों से क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग उस पर तरस खाते हैं, और तरस खाने के बाद से जो हमारी समझ है उसके अनुरूप हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि उसको ज़रूरत नहीं है। वो उस तरीके से देख ही नहीं पाता है कि अब इसका हम क्या करेंगे, जो हमको मदद मिल गई। एक और घटना बताते हैं आपको कि 2008 में जब कुसाहा का बांध टूटा था हमारे यहाँ, तो वो एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई कि बांध टूट गया और नदी बाहर आ गई, और वो करीब उसका पानी 1167 गांवों से होकर के बह करके निकला और गंगा में जा करके पहुंच गया, उससे मिल गया। 1167 गांव के रास्ते से पानी गुजरा, और देश विदेश के बहुत सी संस्थाएं और संसाधन वहाँ उस इलाके में पहुंचे,
और मैं उस इलाके में घूमता रहता था। मैंने कुछ किया तो नहीं, मेरे पास साधन भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए, लेकिन जो लोग वहाँ आए थे बातचीत करने के लिए और लोगों का कल्याण के लिए, एक बंगला में जिसको हम लोग जन दर्दी संगठन कहते हैं, उसकी तरफ से कि वो लोगों की मदद करेंगे, मदद करने के लिए आए। मैं उन लोगों से बार बार पूछता था कि देखिए, एक बात का आपको जवाब देना होगा कि अगर ये पानी जहां आप आए हैं 1167 गांवों से होकर के गुजर रहा है, अगर ये पानी, अव्वल तो ये हर साल आता नहीं है, अगर ये पानी यहाँ नहीं आता तो वो कहाँ गया होता? उनका जवाब होता था कि दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, के पानी कहाँ गया होता। हमारा जो इमीडिएट टास्क है वो ये कि पीपल आर इन डिस्ट्रेस एंड वी आर हियर टू सपोर्ट दैम। वो डिबेट आप बाद में कीजिए। मैं उनको समझाने की कोशिश करता था कि देखिए, ये बांध टूट गया है, जो पानी बाहर आ गया है, जो कोसी के 2 बांध थे उसके अंदर 380 गांव हैं, और ये पानी टूट करके बाहर आ गया, और अभी 2008 चल रहा है, और ये नदी के किनारे जो तटबंध थे ये बने 1963 में। तो 37 साल उधर और 8 साल इधर, करीब 45 साल तक ये पानी तटबंध के अंदर जाता रहा होगा। तो आपके पास यहाँ 1167 गांव हैं और अंदर 380 गांव हैं। तो अगली बार जबकि ये बांध का निर्माण हम कर लेंगे, इसकी मरम्मत कर लेंगे, तो अगली बार ये पानी उन 380 गांवों के ऊपर से जाएगा। तो क्या आप बराहे करम मेहरबानी करके अगली साल फिर आएंगे उन 380 गांवों की मदद करने के लिए? तो बोलते हैं आवर जॉब एंड्स हियर। ये जो गांव हैं जहां हम लोगों ने अडॉप्ट करेंगे वहां उनकी मदद करेंगे, उसके बाद से हमारा और कोई काम नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग जरूर कहते थे कि अब हम यहीं रह जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते थे कि हम लोग चले जाएंगे ये काम करके, वो ज़्यादा ईमानदार थे बनिस्बत उन लोगों के जो कि ये लोग दावा करते थे कि अब हम यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। इक्का दुक्का लोग हैं जो कि सचमुच रह गए, हमारे मित्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन वो जो पूरा काफिला उस वक्त आया था वो वहाँ से चला गया, अब वहाँ नहीं है। अब वो किसी दूसरी जगह चला गया होगा और वही काम कर रहा होगा, जिसमें शायद अगर उनसे किसी ने सवाल पूछा होगा, जो कि मैंने वहाँ काम करने वालों के लोगों से पूछा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा मुझे नहीं मालूम। ये सारी चीज़ों का जो देखने का हमारा नज़रिया है, या जो जिन लोगों से हम बात करते हैं, उनके सबके उनके सेंटिमेंट्स अलग अलग हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग्स अलग अलग हैं। गांव वाले से बात कीजिए तो वो एक तरह की बात बताएगा। वो अच्छी तरह जानता है कि उसका जो झोपड़ी है उसमें झाला लगने से पहले उसको हटा लेना है वहाँ से, वो जानता है। हम नहीं जानते, हम उस पर तरस खाते हैं और उसके लिए कुछ पक्का इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद बाहर हो या अंदर भी हो, और उसका मुकाबला नदी से है, नदी कहीं से भी उसको ले जाए। आज नहीं ले जाए तो कल ले जाए, 2 साल बाद ले जाए, 10 साल बाद ले जाए, लेकिन वो उसको वहाँ रहने नहीं देगी। वो इलाका उसका है। अब नदी के इलाके की बात करते हैं तो बड़ा लोग खड़े हो जाते हैं, उस वक्त साइंस आ जाती है बीच में, टेक्नोलॉजी आ जाती है कि शुड वी लीव इट टू दी फोर्सेस ऑफ नेचर। नो, हमको तो सिखाया जाता है कि नेचर जो है वो नियंत्रित करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए है। बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें कि आपको कर लेना चाहिए। आज हम चांद पर हैं तो इन इमोशनल बातों से तो चांद पर नहीं पहुंचे होंगे, कुछ करके ही पहुंचे हैं, और उसके लिए पीछे काफ़ी बुद्धि लगी होगी, काफ़ी लगन लगी होगी लोगों की, तब वो हम कर पाए। लेकिन चांद पर पहुंचना और डिसास्टर, लोकल डिसास्टर से डील करना, तटबंधों के अंदर के लोगों से डील करना, या सूखे के मुकाबला करने वाले लोगों के साथ में डील करना, ये एकदम अलग अलग चीज़ें हैं और उनके लिए नुस्खा भी अलग होना चाहिए। और इस बीच में एक मैं देखता हूँ कि वो क्लाइमेट चेंज नाम की एक चीज़ बीच में कूदती है। मैंने शायद पहले भी कहा होगा कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद में 1950, 51, 52, 3 साल करीब करीब अकाल की स्थितियाँ बन गई थी। 53 में बाढ़ आई थी, ज़रूर है, 54 में भी बाढ़ आई, और सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमने तो 54 की बाढ़ देखी थी, क्या बाढ़ थी। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि 54 में हथिया का पानी बरसा था? बोलते हैं वो तो याद नहीं है हमको कि हथिया का पानी बरसा था। मैंने कहा उस पर 3 दिन डिबेट हुई है विधानसभा में कि अब इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। जब भुक्त भोगी को नहीं पता है कि उस साल हथिया का पानी नहीं बरसा था, तो जो योजना बना रहा है उसको कहाँ से पता होगा, और वो डिटेल्स वो कहाँ से खोज करके लाएगा या क्या करेगा।
वो जो अनिश्चितता है, वो क्या उस वक्त क्लाइमेट चेंज था क्या? इसी में मैं एक और घटना बताता हूँ कि 1952 में हमारे यहाँ, 1962 में क्षमा करेंगे, उस वक्त अष्टग्रही योग लगा था, जिसमें लोगों का दावा था कि पृथ्वी विनाश को प्राप्त हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। ऐसा तो ग्रह 8 एक बार महाभारत में ही इकट्ठे हुए थे और महाभारत हुआ और कितना बड़ा कांड हुआ उस बार, सब लोग मर गए। तो अब यह है कि उसमें अगर हमने बात की लोगों से कि भाई क्या हुआ था अष्टग्रही योग में आपके यहाँ, वो कहते हैं साहब तकलीफ तो बहुत थी, ठंडा बहुत पड़ा था, लेकिन एक बार मज़ा आ गया। उसमें मज़ा क्या आ गया? बोलते हैं हमने कश्मीर नहीं देखा है, लेकिन उस साल हमने कश्मीर देखा अपने गाँव में। मैंने कहा वो कैसे देख लिया यहाँ से बैठे बैठे कश्मीर आपने? बोलते हैं एक हल्की सी परत बर्फ की हमारी झोपड़ी पर जम जाती थी उन दिनों, तो सुबह उठते थे तो पूरा गांव सफ़ेद दिखाई पड़ता था। तब लोग कहते थे कि ऐसा ही कश्मीर लगता होगा। तो हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे अपने, हमारे सारे कौवे मर गए, कोई बात नहीं, हमको तुलसी के पौधे जो थे वो सब सूख गए, पूजा भी नहीं कर, में भी तुलसी नहीं चढ़ा पाते थे। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, लेकिन कश्मीर भी देखा उसके साथ में, वो एक उसका सकारात्मक पक्ष है। अब सवाल इस बात का है कि हम लोगों में से जो योजना बनाते हैं हम लोगों में से कितने लोगों ने गांव में कश्मीर देख लिया बिहार की, और वो पता कैसे लगता है? मेरा अपना मानना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है, आप क्षमा करेंगे ऐसा कहने के लिए, कि 2008 में जब कुसाहा का बांध टूटा था, तो मैं लिखता रहता हूँ तो शायद लोग मुझे जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्टिकल लिख के भेज दीजिए कुसाहा पर। मैंने कहा ठीक है, लिख करके भेज देता हूँ, जो हालत मैंने देखी है वो लिख के भेज देता हूँ। बोलते हैं उसके जो प्रियम्बल मैंने है, समरी लिखते हैं ना, उसमें लिख दीजिएगा कि ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मैंने कहा ये तो मैं कभी नहीं लिखूंगा कि ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कोसी के एम्बैंकमेंट बने थे 9,50,000 क्यूसेक के लिए डिजाइन किए गए थे, और जब ये बांध टूटा तब पानी का प्रवाह खाली 1,60,000 क्यूसेक था। तो किस बात का क्लाइमेट चेंज? ये तो गलत बात है, आप लोगों को इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टूट गया, लोग डिस्ट्रेस में हैं, उनकी मदद की जाए, उनसे सलाह ली जाए, लेकिन इस तरह का कैनार्ड स्प्रेड करने का हमको कौन हक देता है कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज? नो। तो अगर वहाँ बर्फ जमी नहीं, बर्फ जमी जो 1962 में, वो क्लाइमेट चेंज था, और कुसहा का जो जो बांध टूटा वो भी क्लाइमेट चेंज था, तो इस तरह का जो दोहरी भाषा हम लोगों के यहाँ बोली जाती है, इस पर कहीं ना कहीं से नियंत्रण करना होगा और उसको जाहिर करना होगा कि ये बकवास है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है, लेकिन हर घटना को क्लाइमेट चेंज से जोड़ देना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, हमको उसका जवाबदार बनना होगा उन सारी चीज़ों का जो हम लोग कहते हैं या करते हैं। और इसके बीच में बेचारा जो आदमी है, जो भुक्तभोगी है हमारा, वो पछताता है उसको। मैंने करीब 250-300 लोगों को ऐसी घटनाओं के संदर्भ में इंटरव्यू किया हुआ, एंड अगर गॉड विलिंग अगर कभी मौका हो पाया तो मैं उसको पब्लिश करने की कोशिश करूँगा कि ये उनका कहना है और ये हमारी अनुभूति या हमारा प्रशिक्षण शिक्षण है, इन दोनों के गैप को हम लोग कैसे भरेंगे। मुझे लगता है कि दैट शुड बी द चैलेंज फेसिंग अस, और उस पर काम होना चाहिए। मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ए ह्यूज टास्क कि जो अखबार में छपता है वो सही है, जो मैगजीन्स में छपता है वो सही है, या जो आदमी कहता है भुक्तभोगी या प्रत्यक्षदर्शी कहता है वो सही है, और अगर हमारी टारगेट पॉपुलेशन उन लोगों की है जो कि इसको भोगते हैं, जो कि इस परिस्थिति का बिना किसी बाहरी मदद का मुकाबला करते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर हम लोग कंसंट्रेट करें। और मैं यहीं कह कर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। वो एक जो हाथी को लोग कहते हैं ना कि 7 अंधे उसको देख रहे थे, तो कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। हम लोग उसके शिकार ना हो जाएं कि हम लोग अपने नज़रिए से सारी चीज़ों को देखने के लिए, और ये मैं समझता हूँ जैसा सिन्हा साहब ने बताया कि हम लोग सीधे गांव के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सीधे भुक्तभोगियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहते हैं। नथिंग लाइक इट, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
तो मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। कभी फिर मिलेगा समय तो इसको डिटेल में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. And I'm really fortunate to hear your views. And whenever I go in field, sir, I always remember you, because what you say that we do that, the sahas of teaching locals. I'm sorry, they know much more than us, and we have to learn from them. In fact, Dr. KJ Ramesh is here, and last week we were in Vishwabharati, Shanti Niketan. We went to a tribal village among the Santhal children, and the target group was class 1 to 8. And those tribal children, we thought we are going to teach them. The lesson what we brought in were much more rich than what we had gone to give them, sir. So I fully agree, and I totally agree, climate change perception, sir. We really need to understand, decipher, and use the term climate change very, very judiciously and carefully. Thank you so much, sir. हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे संजय जी, Sir, कि जैसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर, वी पैक एवरीथिंग अंडर नेचुरल डिजास्टर्स, absolutely, sir. which is what I was trying to demystify and demolish, you see. Likewise, we find it very easy to pack every event which is happening under the term climate change. You know what Professor Dinesh Mishra has so very elaborately explained, with his personal experience. So we need to be cautious. We need to really educate our people, you say. I mean, at all levels, at all. It has to be societal learning. It's not just for NDMA and IDM or some people in the states. The common people, the journalists, जैसा आपने कहा कि newspapers में these things come. और वो जर्नलिस्ट जो हैं वो कितना इस चीज को समझ पाते हैं, या they just pick up something here and there and then they go ahead and make a news with some sense out of it. So, yeah, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your views, endorsing everything that how natural are natural disasters. So we should be using those terms very carefully. Now we move to the speaker of the day, Dr. Srija S. Nair. Srija S. Nair is a well-established professional, and to me, she's my younger sister, a playful young professional who is really celebrated. So it's my honor today to invite Dr. Srija S. Nair, Fellow, Earth Science and Climate Change, the Energy Resource Institute, to deliver her. आप नारी शक्ति को इनवाइट कर दें तो आप श्रीजा को ही रिक्वेस्ट कीजिए कि आज का जो लॉन्च होना है उसको श्रीजा काइंडली लॉन्च कर दें, एंड वी विल जॉइन हर. श्रीजा कर दे, और यंगेस्ट है सखी शर्मा फ्रॉम डिम्पा, और आई थिंक एल्डेस्ट हैं वृंदा वरदराजन दुलासी. तो लेट दीज लेडीज, विमेन पावर ज्वाइन. एक हम देख रहे हैं कि बहुत से विमेन हैं एक जगह, रूरल विमेन जो कि गैदर की हैं, आई एम श्योर थैंक्स टू वंदना. तो लेट अस रिक्वेस्ट ऑल द विमेन, रजनी है, आकांक्षा है, फरीहा है, सबको मिल करके इसको लॉन्च करें. Let us Nari Vandan to sir, we have always been worshipping Nari, and we are fully, we obey them, we follow them, and especially with Srija, she really makes me, aap ye karoge, and I do that. So, oh my God. Okay, thank you very much, sir. Thank you. So I'll request all the honorable, respected ladies to launch the magazine today. I'm just sharing it on screen. Yeah. Srija, Dr. Srija, shall I launch it? Sure. Thank you, sir. It's really an honor. I hope you can see the magazine. Yes, I have already seen it. Actually, Akansha has already shared, and it has come up really very well. And I would like to contribute to it in the coming months. Thank you so
So Yes, let's sir. give a clap to the Yeah, No Disasters team. yeah. So Thank this you. is this is the cover page, Yes, sir. and the cover page depicts scenario where houses are under flood, Floods. there is greenery, and there is a city. And there's a Yeah. big interconnect between all the three actions. And what we are talking climate change, how natural are natural disasters. Request all to decipher how these three things, the city, you can see the polluted sky, you can see the mangrove Rivers. is being encroached and the area under flood. This gives us a big interconnect and the lesson. So very good selected cover page, which lot of messages. This is our advertisement page. This is our index where we have analysis, satellite images and floods in India, the roaring flood water, the grasshoppers view of Koshi floods, perspective resource management from Gary, and then role of academia and disaster management from Juhi, and mainstreaming gender into disaster management. This is the message from our editor-in-chief, Sri Anil Kumar Sinha sir, and as he has given physically his words of piece of wisdom today, that we should be using these words carefully. The lightning, monstrous disaster. I would like to share a great news that 3 days back, it has been approved at the apex level, and it's going to be a national program which is being implemented. And I would also like to take the blessings, I request the blessings from my seniors that Government of India bestowed this right to author this program single-handedly, which is a historical fact in the country. This is the satellite images. This is a 72-page magazine with all the articles. The soft form will be shortly there. This is an article from Dina Rake. She is a lecturer from University of Reading, UK. Reading. Then this is the article from Dinesh Mishra, sir. This is the grasshopper's view from Rahul Kumar Yaduka. He is a PhD scholar at Ambedkar University, Delhi. This is flood management measures in India by Priyanka Joshi. She is again a PhD scholar at Ambedkar University, Agra. Flood, as you know, affects everybody. And this is the article from Gary, Water Resource Management and Why Start with Schools. He is aiming to create a generations of water management through children. This is from Chetna Joshi. She is head program and operations at Aranagar Environmental Action Foundation, rejuvenating villages in the catchment of Valley River. Then we have role of academia and disaster management from Dr. Juhi Priyanka Horo. Then may I request somebody is talking behind, आप बात मत कीजिए. Mainstreaming gender into disaster management, the famous activist Dr. Sunita Reddy, professors Jawaharlal Nehru University. And then we have the article G20 2023 Commitment to Disaster Risk Reduction from Shivani Zite. You'll be happy to know that this year G20 used to have generally 12 working groups. Under the India presidency, we created a DRR working group, and 5 important points have been taken as key outcomes of the meeting to be followed up in further deliberations of G21 now with the African Union joining. So now entire global South is almost part of it. And you imagine the early warning, strengthening preparedness and recovery, increased financing for DRR, integrating DRR investment into decisions, and fifth parameter, risk financing and insurance. So those have been included, and compensating disasters, you know, how
You compensate disasters. So that is the deliberation of G20. India announces the Global Biofuel Alliance at G20 way forward. In fact, energy engineering is a tool through which India is going to a transition in the energy utilization in the country. That's a big journey. And this biofuel uses the paddies and the local fuels, which is a great harnessing the local wastes into usable energy form. This is a poetry from Shivangi Datta. She is a faculty of zoology at Goal Institute in Patna. A wonderful poetry worth reading. Please read and offer your comments also. It's really a beautiful poem. And then Aparajita Kumari, our activist, Kabhi baadh na ho bhari, agar puri ho tayari, a corollary draw from Anil Sinha sir's Apada kabhi na ho bhari, agar puri ho tayari. So she has contextualized it with the flood. And these are the children section, where a contribution from children. And this is the tale of Delhi floods by our dear Fariha, wonderfully articulated and illustrative with good Very lessons. good, excellent comic strips. She has absolutely said she has combined the pure science, the inundation map with the local impact. A great job done by Fariha. And this is a poem from, again, Aparajita Kumari, Hathua, Gopalganj, Bihar. Mind it, she's mind-blowing and she's so impactful. This is Joshimath Cracks. This is a new section where all disasters are covered. Climate Ambition Summit, Global Biofuel Alliance, and this is a Libya, Syria, and this is the ad section. And this is our Shakshi Sharma. Floods. He is participating today, and she is the youngest participant today. Great. So this is the complete bouquet of the September edition. A big thanks to Akansha, Vandana ma'am, and the entire team. Now I hand it over to Dr. More women contributors, sir. And the contributors, definitely. Shall I start? Actually, Akansha requested me to make a presentation instead of just a talk. So would you like to continue that, or you just want me to speak as you wish? I can still think of both the words. If you want me to go with a presentation, I have a presentation ready with me. I request if you could share your PPT, ma'am, that would be more engaging for the audience. Yes, sure, I'll do that. Make her the co-host. I'm doing that, sir. Now she has already ordered me, sir. Scarcely nahi ho pa raha hai. Yeah, I am trying. You are registered with what name? Dr. Srija or Srija? Srija Nair. डॉक्टर हर जगह पे डालती नहीं है. Just a minute, sorry, please bear with me. मैं काम करती हूँ, आपको शेयर कर देती हूँ, नहीं तो. नहीं, I'm sharing. I'm just tracking you where you are. आकांक्षा को दे दूँ या आपको दे दूँ? Akansha, Yeah. Akansha, you can also make her co-host. Okay, I can see here. I can make a co-host. Yeah, make her. I have got her now. Yeah. I made her co-host. I see you made her. Okay, Siza ma'am. So you can share it from your end because you have the power now. Yeah. Okay. So thank you once again. And it was really a great opportunity to meet my wonderful colleagues with whom I started the journey of disaster management career from an exploration geologist in 2003. So I started working with NCDM, and then from there to NIDM, UNGP, and then to UNDRR, and also I worked with UN Habitat in Myanmar for some time. So it is like a very interesting topic, as other speakers told,
how natural are disasters. And I'm really feeling humiliated to show my presentation today because I'm sitting in front of such an august gathering who is so much experienced. So I don't really know how this presentation is going to help. But maybe there are a few younger colleagues who are not very familiar with disasters. For them, it may be, a helpful presentation. Since, Akansha told me, so I made a presentation. So, and the topic is the same as the title of this issue of the magazine, How Natural Are Natural Disasters. And some of the colleagues actually requested the presentation to be in English. So it is, I think, helpful. इसलिए क्योंकि ये English में presentation है और I will try to speak mix of English and Hindi. इसलिए दोनों point of view में ये सही रहेगा. क्योंकि जिसको हिंदी समझ में आता है उनको हिंदी में, या जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनको प्रेजेंटेशन से एटलीस्ट आई एम श्योर दैट आप सबको हिंदी समझ में आने लगा है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ हिंदी सीरियल्स थैंक्स टू एकता कपूर. So lot of Hindi serials are there, so everybody is nowadays familiar with Hindi. So Malayalam is also welcome. Yeah. So, if you see, I just want to add this. We cannot blame everything on climate change. So I will rather blame the whole story, like who is actually making a natural phenomena to, a disaster is basically nothing but our development or our aspirations for development. We can't say faulty development as in fact development. It's actually destruction rather than development. So we should think that, who is actually making a hazard to disaster? It's not no one else, but we are making it. So this is what is something which I want to communicate through this presentation. Human activity is we all know that it is recognized as having deteriorating impact on the new non-human environment, because we always see, environment as only, plants, trees, or, water, air, and we never include us as a part of it. So the day when we start including us as a part of it, environment, I'm also part of it, that consciousness will actually solve 50% of the problem. If I am a part of something, I will certainly feel an ownership for it and I want to protect it. So I think that consciousness is something which we are lacking, or it's yet to improve. Then communities are already suffering from the ecosystem devastation in the form of increasing vulnerability and exposure to hazards. As Sir was telling in the beginning that, where was climate change? Maybe climate change was at that point of time, maybe 100 years before also, there were high climate change. If you see geological ages, there were climate change, there were periods of glaciation, there were periods of global warming. It was there, but they were not that fast like what is happening now. Yes, the climate change is a reality, and we can't say that it is not contributing to it, but we cannot put everything under the umbrella of climate change. Like there was an interesting thing which has happened. Like whenever I ask any of my friends after COVID that what happened to you, no, I started losing all my hair. This is because of COVID. For everything you ask, everything they say that is all because of COVID. Everything was put under the umbrella of COVID. So that is not true really. Yes, there may be a contribution for some time, but we cannot put everything under COVID. The same way, we cannot put everything under the umbrella of climate change. So we need to also look into our actions. Then linkage between the deteriorating environment and increased disaster risk. This is actually very evident in IPCC SRES report of 2012, which some of you must have been familiar with. So this is a very interesting picture which I show in the first class of my TERI course every year. So how, what are the environmental drivers of disaster risk and what are the environmental impacts of disasters? So this is, and I consider, us as a part of this environmental impacts of disasters, and we are also a part of the human environment, and we are also part of it. So this is a very interesting, slide which I took from PEDRR, which is Partnership for Environmental and Disaster Risk Reduction of UNEP. This slide, which actually is quite, these two linkages makes us how far we are actually contributing to the increasing incidences of disasters and vulnerability, like how we are contributing to vulnerability, how our actions are introducing new hazards to places which were not there at some point of time,
how we are, calling floods to our home by constructing house in an area which is very close to the floodplain. There were people who were living with floods for years and years. For them, they know how to live with it. But there are new people, like the new urbanization trends. We are actually, damaging the wetlands and constructing housing societies in those areas, which was seen in the last before 2 months. We all know that there was a flood in Delhi, and the NCR region, where some of the areas near to in Noida, Greater Noida and Noida, where land mafia, they promised that we will provide you a house by less than 10 lakhs with no approvals, nothing, and there was a lot of violation of the floodplain regulations, and along the Hindan River floodplain, this entire construction has done, and people lost their house, and nobody gives insurance to such things, and it's just at your own risk you are constructing in those places. So these things are happening, and this is actually increasing the hazards. Actually, the hazard was actually not there. You are invited the hazard to your home. It was a natural river channel. It was a wetland. It was not a hazard. It was a useful resource for all of us. It was a service which ecosystem was providing to us. But we have converted that service, that natural resource, to a hazard by our own actions. So our development, we are bringing new vulnerabilities, new hazards, and certainly increasing the risk by reducing the coping capacities, because people who are not living with those areas do not have coping capacity. If you are living with those things for years and years and generations, yes, they will actually benefit from a flood water, not like us. So this is the definition of disaster as written in DM Act. This I am showing because of having is having a reason in this particular context. I know that each one of you sitting in this room, in this webinar room, knows what is the definition of disaster. But I just want to highlight this because Indian Act, it's almost very similar to one definition given by the UN Office for Disaster Risk Reduction, or UNISDR, defines disaster as a catastrophe or a mishappening or a calamity in area arising from natural or man-made causes, which can result in substantial loss of life and human suffering. Human suffering we are relating with it. Damage and destruction of property, environment is of such a nature and magnitude which is beyond the coping capacity of the community of the affected area. This is what is actually a disaster is. So something which is creating destruction of life, livelihood, property, and damage to environment. So if that is where we can say that no hazard per se is coming and destructing anyone. This is while we are interfering with the nature. That is where the disaster is happening. This is because of the complex interactions of the hazardous environment with the vulnerable conditions. So that is why this slide is important. So there are few pictures which shows how a disaster and hazards are different from each other. Here are some pictures of hazards which we can say is eye of the cyclone, or a landslide, which is a very common phenomena. It's a gravity driven phenomena. It happens and it is must. It has to happen. Then certainly drought, flood, these are all natural phenomena. But what we are, how when we call it as a disaster is when it started affecting us. So like we cannot say always that climate change is contributing, but there are some natural factors which is making India a flood prone country. One of them is monsoon season. Certainly we experience heavy floods during heavy rainfall and floods during this season, and it has benefits, it has some negative impacts. If it is timely and extended over a period of 4 months, in a way it is supposed to happen, yes, it is a beneficial phenomena. And India's agriculture, India's livelihood, culture, society, everything is dependent on it over the years and years. Even our civilizations, yes, it depend on monsoon. So this is must, and it is a natural phenomena, it's a natural factor, but it contributes to floods. Then geological factors, we all know earthquakes which trigger landslides when coupled with heavy rainfall, yes, it leads to more landslides. Then cyclonic storms leading to flooding in coastal areas. These are all natural phenomena. Then river systems, we have river systems which are our lifeline. We about millions of people, like 200
about billions of people, we can say. Globally, 2.5 billion people are actually depending on Hindu Kush Himalayan regions and the rivers which are originating from there. It is a recent IC mode study which I was looking into. It was showing that 2.5 billion of the world population is looking actually, depending on the Hindu Kush Himalayan region for their livelihood in one or other way. So the river systems, yes, they contribute, but they also contribute to floods. So these are human factors like urbanization. This is something which is like where we really need to have aspirations, but our aspirations should not be in such a way that it is, eroding our own developmental gains. But nowadays, what is happening is wherever we are constructing roads, like once I was traveling with Mr. G.K. Bhatt, I could see him here while the new road to Shimla was constructing. They were widening the highway. It's not new road, but they were widening the highway. And entire way they were like, throwing away the construction debris. Wherever there is a space, they were throwing away that debris. And Bhaji was showing me, Shrija, next month you can see that there is a landslide here. This landslide is actually a human created landslide because they are dumping the waste and creating artificial lakes, landslide lakes everywhere around the road. Maybe small in size, like not like the size of Karachu, but they are also good enough for creating, localized debris fall kind of thing, or even landslides and landslide related water. Because this debris is actually block the natural water channels and they impact that area. And lot of constructions are happening along the slopes, which we have seen in the recent floods, like in Himachal Pradesh, where the buildings were falling like matchboxes, where we used to play. Like, one side just a touch and then their, building is falling. So that is also happening. All these are actually because of our own construction practices and the development aspirations, which we need to put some checks. Otherwise, we need to see, we will be actually loser and not really gainers. Then deforestation, clearing the forest and natural vegetation. And now there is one more thing happening is like even around the Delhi region, the natural forest, natural vegetation is being replaced by, newly introduced invasive species which are not used to that area. So we also need to look into those, the consequences of those ecosystem renovation or revival programs. And land use zone changes, like exactly what the case one in the article, there was the lady was showing the land use changes and floods. There was like, which areas are actually been affected by flood, whether it is 2011 or 2021 or 2023. I can say you 100% with assurance that if you see the land use land cover changes of that area, all those areas were at some point of time were illegal colonies. They were being regularized during, several elections or otherwise taken up by the mafias. And even we did some studies on ecosystems and DRR in Chilla village, which is near Mayur Vihar, and along the floodplains, we can see that most of the areas which are having seasonal vegetables, they are now converted into temporary. So last is dam and reservoir management. This was a typical example which we have seen during the Kerala floods. So this, I think everybody discussed all these things. This year, there was a statement from Dr. Mrityunjay Mahapatra, which most of you must have seen. Monsoon is already kind of withdrawing, and we are actually now 6% deficient. But almost every state in India actually experienced flood. So there is a climate variability, there is a irregularity, which has resulted in floods, for sure, to some extent, which is coupled with our actions. So then disasters are certainly not natural. We can't say it is an act of God. Disasters are not. Only hazards are natural, some of them. That again, not all hazards are natural. And we are inviting some hazards to our place by constructing a house inside a paleo channel of river. And we are saying that hazards are natural. No, that hazard is not natural. That is, I invited a natural phenomena to my home, and that has harmed me. So, we can't say that a tiger or a lion is hazardous. It is a life form when it is inside jungle, but if you call it to your home, then certainly it is a hazard. Then there's a time to recognize that there is no such thing like natural disaster. We are doing it for ourselves.
this picture actually shows that, you know, how we create, and this is taken from the Gorakhpur Environmental Action Group. We did a study under the CDKL. So with this, I want to close my thoughts, and thank you very much for giving this opportunity. And I will continue to participate by giving my contributions to No Disaster magazine in the coming issues. Thanks to all of you once again. Thank you, Dr. Srija, for wonderful presentation and illustrating what are the naturals and what are the unnaturals. So ultimately, it boils down to our activities and why these disasters have become so frequent. So we really need to understand the message what you are trying to give is how disasters have become so frequent and what are the reasons for it. In fact, we have Mr. G.K. Bhatt from Taru, whom you are referring. He always keeps on illuminating us about the hazards, how it is happening and why it is happening. And there are so many hazards in the making, which we fully know, right from various events to infrastructures which happen. Now, I'll express my sincere thanks to Dr. Srija Nair for delivering this piece of information and knowledge sharing. I move to the next speaker, Mr. Dhruv Kumar, Panchsheel Development Trust, Bahraich, for his deliberation. Over to you, Dhruv. जी सभी को नमस्ते, मैं सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही। जी जी, एक पीपीटी है प्रेजेंटेशन, प्लीज। Sanjay, sorry to disturb you guys. Hello? Yeah, go ahead. Yeah, we can Okay, hear you. no. The problem is, okay, someone is playing in the background or whatever it is, and now everyone coming here and there. I don't know what's going on there. I don't know. I think just someone has kind of, tried to create a live hall view. So ignore it, sir. Let's hear Dhruv Kumar, sir. Okay, no worries. या सभी को नमस्ते, मैं ध्रुव हूँ। मैं पंचशील डेवलपमेंट ट्रस्ट बहराइच के साथ में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, और यूं तो बाढ़ और इन सारे मुद्दों पर हेलो। Yes, sir. Now. या तो ये काम कर रहे हैं, और अभी जैसे सर ने बता रहे थे दिनेश सर कि बाढ़ के साथ में जो समुदाय के साथ में काम करने की जरूरत है, तो उसी कुछ अनुभवों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक पीपीटी है, हमने शेयर किया है। आकांक्षा जी, आप प्लीज उसको Yes, sir. I am. I just give me a second. I'm doing it. $1998 में काफी जबरदस्त बाढ़ आई थी। आपके पास है, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। काफी जबरदस्त बाढ़ आई थी गोरखपुर में, तो अब एक कमेटी बनी थी और उसमें दिनेश सर भी थे और डॉक्टर भरत झुंझुनवाला थे, प्रोफेसर आनंद थे। तो इन सारे साथियों के साथ में बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। और उससे पहले भी मैं करीब 5 साल पहले से ही फ्लड के ऊपर काम कर रहा था, तो रिलीफ का काम कर रहा था। तो उसमें काम करने के बाद और जब ये अनुभव मिला 3-4 साल काम करने का साथ में, तो उससे कुछ जो निकल के आया, एक नया मुद्दा निकल के आया कि नदी अपना कोर्स चेंज करती है और उस पर लोग काम नहीं करते हैं। तो हमने वही डिसाइड किया कि 2003 से कि मैं नदी कटान से विस्थापित परिवारों के लिए ही काम करूंगा। तो सो प्लीज पीपीटी को प्रेजेंट करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा चलना। सर दिखाई दे रही पीपीटी अभी? हाँ, दिखाई दे रही है। वो पीपीटी खोलेंगे ना? अभी पीपीटी खुला नहीं है, ओनली होप फॉर होपलेस पे गया है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड मैम।
अभी दिख रहा है क्या खुला हुआ? या अच्छा, दिख रहा है। तो Yeah. नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे प्लीज। Is it okay, sir? या स्लाइड चेंज करें। ये एक छोटा सा फोटो है जो कि दिख रहा है कि किस तरह से नदी में सबमर्ज हो रहा है गांव, नदी के किनारे का इलाका। ये बहराइच जिले का है, फखरपुर ब्लॉक का बौंडी और गोलागंज क्षेत्र का। आगे चलेंगे नेक्स्ट। कैसे सबमर्ज हो रहा है, कैसे अपना दायरा बढ़ा रहा है, बस यहीं पे रोक लीजिएगा। तो जो कोर्स चेंज करती है जब नदी, तो उसमें लोगों का घर चला जाता है, पूरा सामाजिक ताना बाना ढांचा सब खत्म हो जाता है और उनकी जो खुद की पहचान होती है वो किसी और गांव में सबमर्ज हो जाते हैं, किसी दूर में चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, तो उनकी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। जो उनके कल्चर का, जो उनके रहन सहन का जो तरीका था वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है, उसके नए की तलाश में रहते हैं और उनका जो आजीविका का साधन जमीन है जिससे वो खेती करके रह रहे थे वो चला जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र सबमर्ज होता है, नदी के इलाके में जद में आ जाता है, तो एक जनरेशन गैप निकल के आता है। वो जनरेशन गैप ये है कि जो बच्चा उस समय पैदा होता है वो 20-25 साल तक वो ये नहीं समझ पाता है कि कैसे खेत था, किस तरह से रहते थे, वो फिर वो दर दर भटकने वाली स्थिति आती है। और उन ऐसे परिवारों का एक है कि उनका खुद का अपना आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल चीज है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और लोगों को जो समझ में आता है वो सेंस ऑफ सपोर्ट, केवल सहयोग की बात, वो भी रिलीफ थोड़े दिन के लिए, 10-12 दिन 15 दिन के लिए पूरी सब्जी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए और वहां से फिर हाथ धो करके आगे बढ़ लेते हैं। और वो जो समुदाय है वो केवल सैल्यूट करना जानता रहा है और वो केवल सैल्यूट करना ही सीख पाता है। और अगर वो अपनी कल्चर को छोड़ता चला जाता है और सैल्यूट के उसमें आ जाता है, यानी जी हुजूरी करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। जो लोग निकल के आते हैं कि वो एक तो इस तरह के परिवारों के लिए कोई रिहेब पॉलिसी नहीं इंडिया में, और जैसे ये होता है या कोई समुद्र में जमीन चली जाती है तो उसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसका जमीन है, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और सेंटर बेस्ड रिसेटलमेंट होता है, अगर कोई किया भी जाता है तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि सेंटर को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि किसी तरह से घर उनका बन जाए। और सरकार यही सोचती है या कुछ लोग यही सोचते हैं कि उनका शेल्टर बेस्ड ही जो है बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी प्लीज फिर आगे स्लाइड आगे बढ़ रही, पीछे जाइएगा प्लीज। ये जो लेकिन जब समुदाय अपना जो है सेटलमेंट करता है तो दो तीन कई चीजों को ध्यान में रखता है। वो अपने तो आजीविका को समझता है और वो आजीविका उसके जो है लोकल रिसोर्सेज पे ही निर्भर होती है। क्या वहाँ पर मिट्टी बन रही है, किस तरह से वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, किस तरह की घास उग रही है, उसके आधार पर वो अपना काम करता है। कैसा पानी है, तो इन सारी चीजों पे अपनी करता है। और जो अपनी उसकी पुश्तैनी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो खेती बाड़ी का, उस पर लेकर के चलता है। और उसमें ये है कि यहाँ पर जब समुदाय आधारित आजीविका जब चलती है, जब समुदाय आधारित आजीविका चलती है तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देती है और वो सोसाइटी को और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनती है। और वो एक सपोर्टिव नेचर का होता है, लोगों का व्यवहार, लोगों का व्यवसाय, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। मान लीजिए हम कुछ उगा रहे हैं तो दूसरा बेचने का काम कर रहा है, तीसरा उसको ढोने का काम कर रहा है, अगला जो है मजदूरी कर रहा है, इस तरह की चीजें करती है। और ये जो है, और उनका जो पूरा ताना बाना है वो नेचर के साथ में एडजस्ट करके चलता है, नेचर के खिलाफ नहीं होता है। नेचर जैसा कहेगा वैसे ही वो काम करेंगे, जिस तरह की मिट्टी छूटेगी उसी तरह की फसल लेने की कोशिश करेंगे और उनके साथ में वो अपना अनुभव जोड़ते हैं, तो इससे उनको बहुत सहूलियत होती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी आप देखेंगे आगे के स्लाइड्स में कि यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर बहराइच में प्रयास किया है वो कुछ परिवारों को लेकर के आजीविका का प्रयास किया कि जब नदी छोड़ती है तो पूरा बालू रहता है और धीरे धीरे कई सालों में, करीब 20-25 सालों में वो मिट्टी बनती है
और जब मिट्टी बनती है तो उस पर हम किस तरह की खेती कर सकते हैं और केमिकल फ्री खेती कैसे कर सकते हैं, उसका एक प्रयास है जो कि लोगों को साथ में जैविक विधि से खेती करने की, परवल की खेती करने की कुछ चीजें हैं जो मैं आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। ये देख रहे हैं कमलेश जी का परिवार है और वो कमलेश जी का परिवार था पिछले वाली स्लाइड में, जो कि परवल की खेती कर रहा था और करीब 3.5 लाख रुपए इन्होंने अपना लोन का पैसा जो है वापस किया और अपना खेती किया और करीब 14 बीघे में परवल की खेती की। उससे इनको काफी सहूलियत हुई और ये अपना काम अच्छी से तरह कर पाए। प्रमोद है जोगापुरवा की, ये भी परवल की खेती की है और इन्होंने जो है करीब 2.5-3 लाख रुपए कमाई की। आगे चलिएगा। नेक्स्ट हरद्वारी का नेक्स्ट, ये बलिराम जी हैं, इन्होंने भी परवल की खेती की और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों ने जो ये परवल की खेती करने की कोशिश कराई, इसमें मचान बनाने की, क्योंकि बालू पर बहुत जब गर्मी होती है तो बालू पर परवल अच्छा नहीं आता, तो थोड़ा बांस का और उसके फूस का जो है लगा करके और मचान बनाया गया और उस पर परवल का जो आया वो बहुत अच्छा परवल पैदा हुआ। और इस परवल से प्रति परिवार करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का औसतन आमदनी हुई। और यहाँ पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि जब हम गेहूं और धान की खेती किसान करता है तो प्रति एकड़ वो ज्यादा से ज्यादा 16 से 18 हजार रुपए का लाभ कमा पाता है। वहीं जब वो नकदी फसल करता है और उसमें भी जो हाई वैल्यू क्रॉप करता है तो वो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ कमा लेता है, और बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। किसी किसी किसान ने तो करीब 1.5 लाख रुपए परवल से कमाया। और इस बार जिस तरह से गर्मी थी उसमें जो ये निकल के आया कि इस खेती में उनको करीब 180 दिन तक निवेश करना पड़ता है और 10 रुपए सैकड़े महीने के हिसाब से वो पूंजी लाते हैं। तो अभी ये किसानों ने ही, समुदाय ने ही तय किया, किसी ने मूंगफली लगा दिया था तो बहुत अच्छा हुआ, किसी ने घुइया लगा दिया, अरवी लगा दिया तो बहुत अच्छा हुआ। तो अब की बार पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में इन्होंने 7-8 चीजों को शामिल किया है कि हम केवल एक तरह की खेती नहीं करेंगे, कि हम मिक्स खेती करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें पूंजी बराबर जो लगानी होती है वो लगती भी रहेगी और हमें उससे कुछ आमदनी भी होती रहेगी। मक्का कर लेंगे तो ये कर देंगे। और उसी के साथ में जो नदी विस्थापित परिवार थे उनके जो है स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खतरनाक थी, यानी महिलाओं की, बच्चों की, क्योंकि अनाज तो मिल जाता है लेकिन सब्जी दाल ये नहीं मिलता है। तो लोगों ने पोषण वाटिका बहुत अच्छे तरीके से चलाया किया और ये सारा कुछ इनके जो है खाने की थाली में काफी, खाने की थाली में सब्जियों की मात्रा भी बढ़ी, साथ में उसकी वैरायटी भी बढ़ी। अगर आप देखेंगे आगे की स्लाइड्स में तो ये दिखेगा आपको। प्लीज नेक्स्ट। हेलो, ये राम सवारी जी है, इन्होंने सब तरह की आपका सोया, मेथी, मूली, पालक, इस तरह से खेती की। करेला आगे भी देखेंगे, इसमें इनके करेला है, तरोई है, खीरा है, बहुत तरह की सब्जियां इन्होंने ली है। और इससे इनको इनके स्वास्थ्य में करीब 70 साल की हैं तो भी इनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपके जो सीताना जी हैं, इन्होंने अपनी खेती में अलग एक तरीका निकाला जो हम लोग मॉडल इनसे भी सीख रहे थे, सीताना जी से। नेक्स्ट प्लीज, आप आगे पीछे कर दें। नेक्स्ट आप देखेंगे सीताना जी ने परवल को भी लिया, भिंडी भी लिया है, नेक्स्ट लोबिया और करेला, ये सब चीजें इन्होंने अपने खेत से लिया है। तो इससे क्या है कि ये खुद भी खाते हैं और बेचते भी हैं। इन्होंने कम से कम 1000-1200 रुपए का पर डे अपने खेत से बेच लेती है। इनका भी नदी कटान से निकल गया था, पूरा घर जमीन सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने 1.5 बीघा जमीन अलग से लेकर के किराए पर और इस पे ये अपने उन्होंने पक्का मकान भी बना लिया है और इस तरह से अपना रहन सहन भी कर रहे हैं और सम्मान के तरीके से, और अपने घर पे इनका बिक जाता है। तो मेरा ये कहना है कि समुदाय जब अपनी आजीविका वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप पैदा करता है तो निश्चित रूप से वो अपने लिए बहुत ही लाभकारी बना सकता है। और किसी के दूसरे के बनाए हुए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर या आजीविका के किसी भी मॉडल पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम समुदाय केंद्रित या समुदाय के नेतृत्व में समुदाय की समझ को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो नदी विस्थापितों के जिस तरह से हम लोगों ने प्रयोग किया है काफ़ी
अच्छा है। और अब उस इलाके में ये नदी विस्थापित जिनसे लोग कोई बात नहीं करना चाहते थे, कोई उधार ना मांग ले, आज लोग कहते हैं कि जोगापुर हुआ, सिलौटा, ये सब पूरे धनी गांव हो गए हैं। ये 5-7 साल में इन लोगों ने परिवर्तन हुआ है। और इस तरह से एक सीख है हम सभी के लिए कि बदतर स्थिति में 25 साल पहले इनकी स्थिति क्या थी और आज इनकी स्थिति क्या है। लेकिन नो डाउट समुदाय ने बहुत मेहनत की है और हर चीज को मानना है और अपने ज्ञान को, इनके ज्ञान को सम्मान जब मिला है तो ये बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़े हैं। तो मैं बस इतने ही के पीपीटी के सहारे इतने ही बोलना चाहता था कि किस तरह से जहां पर निराशा है और वहां कई घोर निराशाओं में भी आशा की जो किरण निकल के आई है। नो डाउट ये हम सभी के लिए सीख है कि किस तरह से समुदाय को जब सम्मान मिलता है तो अपनी आजीविका को सम्मान से, अपने जीवन को सम्मान से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। और हम सबके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ध्रुव जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। Sanjay sir, thank you so much, Dhruv sir. Thank you very much. Sanjay sir, are you there? नहीं, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 कमेंट्स है मेरे, अगर परमिट करें तो मैं बात करूँ। Sir, you can speak right now also, or Yes, we right have now, we right have a now. last speaker, and after that we have a I have okay, okay. मेरा छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा और सजेशन है। ध्रुव जी का प्रेजेंटेशन जो हुआ है, ये बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। लेकिन एक बात ये भूल गए, मैं भी गोपालगंज से हूँ और मैं अपने गांव में मैंने देखा है इस चीज को कि जब इस तरह से रिवर अपना कोर्स चेंज करता, अपना ये चेंज करता है, तो उसके बाद से जो रिवर बेड, जो खास करके लैंड है, उसके ऊपर जो सैंड आने के बाद से लैंड डिमार्केशन खत्म हो जाता है। और ऐसे में लैंड, गांव की पॉलिटिक्स है, लैंड माफियाज जी इस तरह से कहिए कि ग्रैबर्स जो होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, वो उसको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके उस जमीन को अपने अंडर में कर लेते हैं और उपजाते हैं और ये करते हैं। उपजाना बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन अगर इन सब चीजों पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें, बात करें, तो बहुत अच्छा इसमें ये रिजल्ट निकल के आता है कि एटलीस्ट जिसकी जमीन है, और जमीन में सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए उस इलाके में, तो सर ये देखने को मिलता है कि सब मार्जिनल फार्मर्स है। ये किसी के पास 5 कट्ठा, किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास मैक्सिमम एक बीघा जमीन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के बाद से, जमीन बट जाने के बाद से इससे ज्यादा इनके पास जमीन नहीं होती है। और जो खास करके पुअर फैमिलीज हैं, वहां पर उनकी फैमिलीज में बहुत कम खेतियां। तो अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास ये जो जमीन होती है वो डिमार्क भी नहीं हो पाता, मार्किंग नहीं हो पाता कि कौन सा जमीन मेरा है, कौन सा नहीं है। और इसकी फायदा वहां पर जो बाहुबली है उसका उठाते हैं और उस जमीन को ग्रैब करके वो दिन प्रतिदिन धनी बनते हैं और बाकियों के साथ ये प्रॉब्लम आता है। इसको भी एक बार शेयर करना चाहिए था। थैंक यू। अदरवाइज बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। मैं अभी आपकी बात का थोड़ा सा वो कह दूं, ये हम लोगों ने 2012 से 15 के बीच में लैंड का डिमार्केशन करवा दिया था, उसके बाद ये काम किया है। तो ये हमको बहुत अच्छी सफलता मिली थी। मैंने 4 साल इसी पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, डिमार्केशन को लेकर ही काम किया था। उसके बाद बहुत बढ़िया ध्रुव साहब, इस चीज को आपने किया था। लेकिन मैं अपने बिहार की बात बता रहा हूँ, आपसे सटे हुए गोपालगंज है, यूपी से बिल्कुल सटा हुआ गोपालगंज है। अभी यहाँ पर उस जमीन का डिमार्केशन क्या, लोगों को तो पुश्तैनी जमीन है, आपस में वो बोली से अपना बांट लिए हैं कि ये हमारी जमीन है, लेकिन रिटर्न अगर चाहिए उनको, रजिस्टर्ड वो चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक भारी मुसीबत इस तरह की आई है वहां पर। अगर उधर भी काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे ये करके कि एटलीस्ट जो पुअर फैमिलीज है उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा उनको। और इससे अगर जो चीज आपने दिखाया कि किस तरह से फार्मिंग हम कर सकते हैं और दूसरे की जमीन को भी लेकर के बटाई में लेकर के और उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ें संजय, प्लीज लेट अस मूव अहेड। थैंक यू वेरी मच श्री ध्रुव कुमार जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। क्योंकि हम समय से कुछ ज्यादा ही पीछे चल रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल कोई और समय नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी अगली स्पीकर अपराजिता कुमारी, जो कि एक DRR एक्टिविस्ट हैं
और उनकी कविताएं आपने हमारे नो डिजास्टर्स मैगजीन में देखा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कविता अपराजिता कुमारी जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज आप अपना वक्तव्य दें। ओवर टू यू श्रीमती अपराजिता कुमारी जी। जी बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी सर, धन्यवाद सर। और सभी लोगों को, सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। जी सर, और मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि मुझे आप सभी लोगों को सुनने का मौका मिला और मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा गया, तो मैं बहुत ही ज्यादा और अभी तक जहाँ तक बात हो रही थी डिजास्टर के कारणों की या उसके किस प्रभावों की, मैं यहाँ पे चूंकि मैं शिक्षिका हूँ तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे पूरे बिहार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उन स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के द्वारा हम बच्चों को, मतलब स्कूल लेवल से हम बच्चों को जागरूक करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस आपदा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूर्व से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बच्चों को ये करते हैं, क्योंकि जितनी भी आपदाएं आ रही हैं तो उनसे बचने का सबसे पहला जो मूल मंत्र है कि हम पूर्व से तैयारी करें। और जानकारी और बचाव तो जरूरी है ही, लेकिन किसी भी आपदा के बारे में जब हम जानकारी रखते हैं तो हम उस आपदा को बहुत सिलसिलेवार ढंग से उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो हमारे बिहार में करीब सभी स्कूलों में सुरक्षित शनिवार का ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और मैं जानकारी ये देना चाहूंगी कि हम लोग सभी अभी बात कर रहे थे आपदाओं के बारे में और आपदाओं से होने वाले प्रभावों के बारे में, कारणों के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहूंगी कि चूंकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा काम करती हूँ और मैंने जो पीपीटी बनाया है वो बच्चों के हिसाब से ही बनाया था कि बच्चों को मैं समझाती हूँ कि किस तरह से हमें इस एक बाढ़ जैसी आपदा का हमें प्रबंधन करना है। तो मैं, क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? यस मैम, सभी लोग सुन पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो? सभी लोग आपको सुन पा रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आकांक्षा, आपका स्क्रीन आ रहा है? यस सर, वीडियो ऑन है सर। जी सर, स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंटेशन चलाया है मैंने। अपराजिता जी का। आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है सर? नहीं, प्रेजेंटेशन जी नहीं सर, आ मैंने एक पीपीटी भी बनाया है छोटा सा, और मैं ठीक है मैम। अभी खुला नहीं है सर मैम, प्रेजेंटेशन खुला नहीं है अभी। जस्ट तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हम लोग किस तरह से, अगर हम बाढ़ जैसी आपदा के बारे में बात करते हैं तो पूर्व तैयारियां, आ गया प्रेजेंटेशन। जी मैम, हमारी पूर्व तैयारियां जो होती हैं स्कूल लेवल की, देखो विद्यालय जी लाइव दिखा रहे सर, देख लो। क्योंकि किसी भी आपदा के समय हम जानते हैं आपदा के समय सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं और हमारी जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि जिस जनरेशन से वो लोग आ रहे हैं, यानी कि पूर्व में उतनी जानकारियां, उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि हमें किस आपदा के समय क्या प्रत्युत्तर देना है या क्या उसका हमें उपाय करने। तो आज हम बच्चों को अवेयर करने की बातें कही जा रही हैं, तो बच्चे जो हैं वो कल के भविष्य होंगे। और अगर हम आज बच्चों से ही तैयारियां शुरू करते हैं तो हम बहुत हद तक, बच्चे अपने परिवार में बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने आसपास के जहां भी वो खेलने जाते हैं वो बार बार इस बात को शेयर करते हैं कि आज हमें ये बातें सिखाई गई। तो एक छोटा सा चित्र है जिसमें ये दिखाया गया है कि विद्यालय जो बाढ़ आ चुकी है, मतलब ये दर्शाया गया है कि बाढ़ आ गई है और
इसमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, और हम लोग सभी जानते हैं कि बड़ों को तो करना ही पड़ता है, लेकिन बच्चे किस किस मुसीबतों से गुजरते हैं, मैं उन पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैम आगे बढ़ाएंगी, नेक्स्ट प्लीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Can you see? Yeah. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम बाढ़ जैसी आपदा के दौरान बच्चों को कैसे हम सुरक्षित रखने की संस्कृति को विकसित कर सकते हैं और उनकी आदत में शामिल कर सकते हैं कि वो क्या तैयारियां करें और क्या क्या पहले मुसीबतें आती हैं, हम पहले उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों के लिए कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज मैम। जैसे बाढ़ में बच्चों की पाठ्य सामग्रियां खराब हो जाती हैं। ज्यादातर लोग अपने अपने सामानों को बटोरने में रहते हैं बड़े, कि अपने कीमती सामान, अपने कागज, अपने कागजात, अपने I can't hear Aparajita ma'am. Is there anyone else who can hear her? नहीं सुनाई देता। We can't hear her. Yeah, I think, because she's not in a proper place on her desk. She's using her mobile phone and she's speaking, from on the go. So I guess she's having this network issue. Yeah. Let's be patient for a minute and give her an opportunity to rejoin. फोन से कांटेक्ट करके पूछ लो कि वहां पे पावर कट ऑफ तो नहीं हो गया। Yeah, just a second, sir. ये इलस्ट्रेशंस तो बहुत अच्छे बने हाँ। हुए हैं, इन्होंने बनाया है। हाँ, और मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, वो जब पानी भर जाता है तो बाढ़ के पानी में खेलने के दौरान वो ये नहीं जानते कि कहाँ कितनी गहराई है, कहाँ क्या खतरे हैं। बहुत सारे बच्चे पुल पुलिया से छलांग भी लगाते हैं, तो अगर नीचे पत्थर हो या कुछ नुकीली चीज हो तो उससे भी वो चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत मतलब ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि बाढ़ के दौरान बच्चों की जो बाल सुलभ प्रवृत्तियां होती हैं, उनको हम उन पर भी अंकुश कैसे लगाएं या उनको कैसे हम समझाएं कि बच्चों ये जो है बाढ़, ये बहुत ही भयानक इसका प्रभाव होता है और इसमें बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि इस दौरान बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं। कैसे? या तो वो डूब जाते हैं या पानी बहा कर ले जाता है। तो इन सभी चीजों से जागरूकता के लिए हम लोग स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में ही ये बताते हैं कि बच्चों आप कभी भी बाढ़ के पानी में खेलने ना जाएं और जब तक आपके साथ कोई बड़े ना हो उसमें आप पानी के अंदर प्रवेश ना करें या उसे पार करने की कोशिश ना करें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह हम अपनी मनमानी करें। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए हम लोग विद्यालय स्तर पर तैयारियां करते हैं और बच्चों को बताते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक प्रयास है, अभी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि स्कूल लेवल पर जब हम बताते हैं तो उसके साथ साथ गांव वालों को, समुदाय को भी जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट प्लीज मैम। और Yeah, can you see आपदाओं के दौरान Aparajita ma'am?
यस यस मैम। आपदा के दौरान ज्यादातर ये देखा गया है कि बच्चों को फुसलाने की घटनाएं या उन्हें बहला फुसलाकर दूसरे जगहों में ले जाकर बेच देने की घटनाएं, या जो बच्चे भटक जाते हैं उन्हें अलग अलग तरह के बाल श्रम में लगा दिया जाता है, जैसे घरों में काम करना या दुकानों में काम करना या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए उन्हें बहला फुसलाकर ले जाया जाता है। तो इस समय चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हम लोग ये बताते हैं कि हमेशा माता पिता के साथ रहें, कभी भी अकेले इधर उधर ना जाएं और हमेशा समुदाय के साथ रहें और ज्यादातर अजनबियों से बातचीत ना करें और जितने भी प्रलोभन देने वाली चीजें हैं उन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस दौरान ऐसा होता है कि खाने पीने की चीज हो या कोई आकर्षक बच्चों के आकर्षण की चीजें हैं, बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और जहां तक खाने पीने की चीजें होती हैं या फिर रुपए पैसे होते हैं, उन सभी प्रलोभनों से बच्चे बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं, उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा है और उस दौरान जहां भी रिलीफ कैंप वगैरह बनाए जाते हैं वहां सुरक्षा का इंतजाम, पूरा इंतजाम प्रशासन की ओर से होना चाहिए और बच्चों के लिए एक विशेष सुरक्षा घेरा भी होना चाहिए। तो ये हम लोग सिर्फ बच्चों को अवेयर करते हैं, बताते हैं कि बच्चों इन सब चीजों से हमें दूर रहना है और ज्यादातर कोशिश करना है कि अपने परिवार के साथ, अपने समुदाय के साथ रहें। आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि बाढ़ के दौरान जो जल जनित बीमारियां हैं, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, खाना जल्दी खराब होने लगता है, क्योंकि उस समय पानी से आना जाना होता रहता है, तो स्किन डिजीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साफ सफाई की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। अब उससे सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, उल्टी दस्त होना, बुखार लगना, वायरल फीवर, ये सारी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में उस समय दौरान पाई जाती हैं। यहाँ तक कि ये जानलेवा भी हो जाती हैं, क्योंकि जब उचित प्रबंधन ना हो, उचित जानकारियां नहीं होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, बड़े लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग अपने विद्यालयों में ORS का घोल बनाना और खाना हमेशा ढक कर रखना, पानी उबाल कर पीना, ये सारी छोटी छोटी जो रोजमर्रा की आदतें होती हैं, रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इन सभी बातों को समझें, जाने और इनका ध्यान रखें। और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये जो विषय होता है ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है कि बच्चों को उस दौरान हम सुरक्षित कैसे रख सकें। और जो हम लोग यह भी करते हैं कि जो स्वास्थ्य समुदाय के स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके नंबर लिखने के लिए उनके फोन नंबर लिखें, उनसे संपर्क में रहें, या जो समुदाय के लोग होते हैं, मुखिया होते हैं या ANM दीदी होती हैं, ये सभी लोग भी उनके नंबर बच्चों को और उनके परिवार वालों के पास रहें। तो इसके लिए भी हम लोग जागरूकता और बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आप लोग जरूर इन सभी लोगों से संपर्क में रहें और हमेशा इनसे बातचीत करते रहें। कोई भी समस्या हो तो आप उनसे मदद मांगे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तो के हम लोग को हैं चिन्हित है कि जो लाल जरूर होते हैं कि ये बताते हैं कि बच्चों आप अपने अभिभावक से ये बात कहें कि वहाँ जहाँ भी गहरे पानी का स्थान हो, चाहे नदियां जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो वहाँ एक लाल निशान लगाया जाए जिससे कि
क्या हो कि वहाँ पे एक निशान रहने से होता है कि लोग सतर्क हो जाते हैं, और उन्हें सतर्क करने के लिए ये इस तरह का हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं कि खतरे का निशान लगा हो, और लोग उससे पहले ही सतर्क हो जाएं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ सुरक्षात्मक किट की बात करते हैं। किस तरह के आपदा ये सुरक्षा किट जो होते हैं वो 3 तरह के हम लोग कहते हैं। सूखे भोजन का किट, जिसमें चूड़ा, सत्तू, बिस्किट, चीनी, नमक, आटा, इस तरह के, और जो कि अगर आपको जलावन उन लोगों को नहीं भी मिल रहा है तो वो कुछ दिनों तक, जब तक सहायता सामग्री ना आ जाए सरकार की तरफ से, तब तक ये उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक 3 तरह का हम लोग किट बनाने के लिए बताते हैं। एक आपातकालीन आपदा सुरक्षा किट, जिसमें टॉर्च हो, बैटरी हो, रस्सी हो, डंडा हो, या फिर जो जरूरी कागजात का किट एक बनाना बताते हैं। साथ ही हम लोग बताते हैं कि जो परिवार है, समुदाय है, अगर उसे घर छोड़ने की स्थिति अगर उसके सामने आती है, उसे राहत शिविर में रहना है, तो अपने साथ वो क्या क्या लेके जाएंगे। वो अपने साथ गर्म कपड़े, उसके बाद लेके जाएंगे जितने, 1 मिनट मैम, हम ये बताते हैं कि आपातकालीन किट में 3 तरह का किट हम लोग जब बनाते हैं, तो सूखे भोजन सामग्री का किट, जरूरी कागजात किट, और जरूरी दवाइयों का, या फिर जो जितने उनके जरूरत के सामान हैं उन सभी का किट वो अलग अलग बनाना हम लोग बताते हैं। और इसमें जब वो घर से विस्थापित होते हैं तो घर के सभी जितने भी स्विच हैं वो बंद रखें, गैस का जो सिलेंडर है उसका वो नॉब बंद करें, मेन स्विच ऑफ करें, ये सारी चीजें भी बच्चों को हम लोग जरूर बताते हैं। उसके बाद ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हमेशा अपने परिवार और समुदाय के साथ बच्चे और सभी लोग समूह में रहें, ताकि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो ज्यादातर अकेले, जब बच्चे अकेले या महिलाएं या फिर जो इस तरह के अकेले में जब बच्चे मिलते हैं या महिलाएं मिलती हैं या कोई लोग अकेले मिलते हैं, तो इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। और जब रिलीफ केंद्र में जाना होता है तो बाकी जरूरी सामानों के साथ बच्चे जो हैं विद्यालय के रजिस्टर, विद्यालय के किताब, कॉपी, या फिर इन सभी चीजों को भी, जो जरूरी चीजें हैं उन सभी को भी वो अपने साथ ले जाएं और ऊंचे जगहों पर, ऊंचे स्थानों पर उसको स्टोर करें। और साथ ही जो इनका खेती का सामान होता है या फिर जो औजार होते हैं उनको भी वो ले जा सकते हैं। तो हम लोग जितनी भी बातें कर रहे थे वो हम लोगों ने चूंकि स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में उनको बताया है। जी प्लीज क्लोज। जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो हम लोग जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के लिए जो काम करते हैं सर, उसके लिए हम लोगों ने इन सभी तैयारियों को करके रखा है और कोशिश की है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। और चूंकि ये बिहार में सभी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम चलता है, जैसे आज का विषय है कि जब भी हमारे हर महीने में जो 4 शनिवार होते हैं, जब 5वां शनिवार आता है तो हम स्वच्छता, साफ सफाई, हाथ धोना और इन सभी जितने भी स्वच्छता की बातें हैं उन सभी बातों को बताते हैं। और आज भी हमारे विद्यालय में इस विषय पर, स्वच्छता और साफ सफाई, शुद्ध पेयजल पे चर्चा हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और आपकी एक एक स्लाइड थैंक यू सर। इतनी पावरफुल, इतनी प्रभावशाली थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी कि आपको, अगर आप नहीं भी बोलती तो उसका पूरा मतलब लोगों के सामने जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज सीखने की, आप एक शिक्षिका हैं और आपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें सिखा दिया कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को अच्छी बातें कैसे बताई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
आज थैंक यू सर, शुरुआत थैंक यू सर। वेलकम मैम। आज शुरुआत में ही दिनेश मिश्रा सर ने कहा था कि हम लोगों के पास जो साहस करते हैं सीखने जाने का बताने के लिए, लेकिन किनके अंदर कौन सी क्षमता है, टैलेंट है, वो आपस में बात करके उनसे देखकर ही समझ में आती है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और अनिल सिन्हा सर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आज उनको कितना अच्छा लगता होगा। तो बिहार में उन्होंने नींव डाली थी एज वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आज वो आप लोग उसको आपने बरकरार रखा और उसको बिल्कुल जमीनी स्तर पे आप काम कर रही हैं। तो 10 साल 12 साल के बाद जब आप अपने काम को इस तरीके से देखें कि अगली जनरेशन ने अपने साथ में ले लिया है, तो ये बहुत ही आत्मीय, सुखद और संतोष का विषय है। अनिल सिन्हा सर, thank you so much sir for laying the foundation of these grassroots level interventions which is so successful today. We have finished with all our speakers, but we have a lot of distinguished guests who are on board today. Before we move further, I'll request if all can switch on their videos. We would like to take a group photograph. So I'll request everybody to switch on their video, and then I'll hand it over to Anil Sinha sir to interact with everybody. So kindly switch on your videos. We are just taking the group photographs. बहुत से लोगों ने स्विच ऑन नहीं किया है। दिव्या जी, फरीहा, डॉक्टर गौतम कुमार, Sir, sorry, here network is little slow. Bhatt sir, kindly switch on your video. We would love to see you, sir. It's really long. Navdeep. And all these youngsters, Professor Priya Namrata Topno, please switch on your video. मैं आपकी फोटो खींचना चाहता हूँ। फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़े क्योंकि टाइम नहीं। Yes sir, I have done it, sir. Over to you, sir, for further deliberations. Sir. Three pages for photographs. I have taken, sir, all three. Okay, wonderful. Over to you, sir. Okay. Thank you. बहुत बढ़िया. Thank you, संजय जी. आज आई थिंक हमारे सत्या नहीं है ना बोर्ड? नहीं सर. अच्छा. तो हमारे बहुत ही जो सपोर्ट सिस्टम है उसके पिलर हैं सत्य स्वरूप जी. हम समझते हैं आप में से ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर, but he's been facing various disasters, on personal front. So it's very brave of him still to, provide all the support. Now we don't really have time, and I don't really want to violate the time discipline, you see. So what do we do in the last 2 minutes? Sakhi is the youngest. Sakhi, तुम कुछ बोलना चाहोगे? Yes, I just सर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हर बार कुछ सीखने को मिलता है और मैं सीख के जाती हूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके कॉल करके बताती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. You are the champion. You are the hero. Keep doing that. That is how you will become. You are already change agent. अब हमारे पास कहना है इनवाइट बाला प्रसाद जी, बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं. बाला प्रसाद जी, कैन वी हैव 2 words from you of inspiration? मैं तो सर सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको बुलाया और मैं आपके चलते इसमें पार्टिसिपेट किया, और सारे स्पीकर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं. उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही. एक चीज मैं जरूर फ्लैग करना चाहूंगा, जो कि जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं उस समय हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बारे में बात करें, क्योंकि बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम डिजास्टर को मैनेज करें.
और ये चीजें भी इस पे डिस्कस होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत अच्छा जगह है ये सब चीज डिस्कस कर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you, Balaji. Thank you so much. I was just wondering who else. See, KJ Ramesh ji has left. Sucheta Mandal is a very senior scientist. She was there. I had once talked to a group of senior scientists from Department of Science and Technology in IIPA. She was there. GK Bhatt ji हैं. भट्ट जी आप हैं तो जरा रिस्पॉन्ड करें. Okay, Gauri Shankar, are you there? Gauri Shankar, I think your name is there. No, I'm here, sir. Okay, I'm okay, here. You can see wonderful, my, wonderful. So because can I'm you- coming through the can mobile you- and I'm just, listening through the, Thank this you. one. Okay. Thank you. Fantastic. Okay, one of the very well explained forum, and what we have done in ADRC or the Japan and the UN ISDR is the one that Professor Srija already spoke about, and mainly it's a natural calamities mixing with vulnerabilities, and that is mixing with the exposure level to the vulnerabilities, creating the impact. That is the disaster. So we can't stop it. We can't stop the natural disaster, natural calamities, but we can reduce the vulnerabilities, remove the exposure from the vulnerabilities, so that we can reduce the impact of the disaster. That's very well done. But I'm so emotional in the last presentation by Abhijita madam. Oh, Yeah. The pictures speak a lot. You don't have to speak. The pictures spoke a lot. Beautifully done, beautifully rendered. And and also we talked about the disasters and everything, but post-disaster human related impact, like child trafficking, human trafficking, and also other corruptions and vulnerabilities, fantastically explained. So that's what we need to focus on. That you can't do anything with a natural calamity, but you need to talk about the future impact of those things in the humanitarian side. That's also one of the things. One of the beautifully done, very well done. Sorry, I couldn't understand half of the presentation, but little bit Hindi knowledge. I was able to get it, but the last presentation I understood everything, because though she spoke in Hindi, I was able to get everything through the pictures. That's the thing, that pictures speak a lot. Beautiful, sir. Beautiful. My pranam. Pictures speak 1,000 words. 1,000 words, so not even million words. Sir. Thank you. For the benefit of all other participants, Gauri Shankar Sharma is a Sri Lankan. His name is just like, Indian name, Sri Gauri Shankar. They can't. Yeah, because my dad was born in India, and he migrated to Sri Lanka when he was very young and married to my mother. She's a Sri Lankan, so I was born and brought up in Sri Lanka, then studied in Chennai, Madras Christian College next to the Indian Air Force camp. Then, I pursued my higher studies in Japan and other places. Yeah. Now we have a very senior lady taking part, Dhulasi Birunda Vardarajan madam. Can you, in 2 sentences, just express? I'm sorry for the time limitation. Okay, sir. Okay. Thank you for giving me a time and a place in this discussion. I would like to say that it's clear that it is not merely a natural disaster, but a human-made anthropogenic efforts are there. I am an environmental economist from Madurai Kamaraj University. And so what is lacking is the town planning. So there are acts that human settlements should not be near the river. It should be away from the seashore of 500 meters. So despite of that facts, and despite of the rules and regulation laws, and so many human settlements are nearby, near the rivers. So your journal also exhibit the same thing. The front page, I admit that it is explicitly telling that the truth.
So we have to discuss that also from the administrative, from the bureaucratic and administrative side and the policy oriented, how we can overcome this. Not only mere human in the general term, not in a general term, but in a specific. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, madam, for highlighting, the critical factor relating to town planning. Yeah. And we are seeing, urbanization, which is so haphazard, which is totally unplanned and taking place in the most vulnerable areas, in the town or near the town. They are also the cause of wiping away from the map, the water bodies. In Chennai, there used to be drainage system, especially drainage system. Yes, drainage system, other ponds, this and that, etc., etc. So I think this town planning, proper town planning, is very, very important. I think one of the issues we should be focusing on town planning, and we will take your help in that issue. Okay, sir. Yeah, Definitely. I know that many other people may like to speak, but I am seeing that, from an attendance of more than 80%, in fact, total attendance must be more than 100, because there was a group of ladies participating, etc., etc., you see. Now we have come to 51, and we must stick to time. So my apologies to everyone. I want to hear most of you, all of you, and I'm sure many of you want to express your experiences, views, and all that. But let me say that no disasters is a continuous dialogue. No disasters is about establishing equation, going out, reaching out to the common man and the citizens out there on the street, you see. I'm always speaking of that. I'm always emphasizing at this moment, जब हम लोग ने इन सब चीजों की बात की है, we should be thinking of the guy who is selling vegetables, who is selling fruits out on the road. He's got a cart, a रेड़ा जो है, वो लगा के, carpenters who come, plumbers who come, they are the ones who have almost no safety nets, you see, and many others. And how does disaster management or this whole concept and planning, everything, interface with them, you see? That is the kind of a mission we have. That is why, as Akanksha said right in the beginning, and Sanjay ji has also emphasized, we try to demystify and simplify. I mean, there can be very high-fi kind of a discussion on are natural disasters natural, how natural are not natural disasters. But then we want to really simplify, demystify. That has been one lesson which I learned early in my life. Because if you want to go to the common man, you see, and common man would also include, let me tell you, I live in a kind of a upscale locality in Gurgaon, one of the top metropolitans kind of in India. And here also all ladies who are young ladies who are very well educated in jobs, etc. But you talk of disaster management, and then there is blank face, there is worried face, there is concern, there are questions, one after the other, how to do, what we'll do, even if a small fire takes place or something else happens. So that is what I find, that there is a huge disconnect. There is a huge disconnect which our planners, our bureaucrats, our ministries, those who are into policy making, those who are into strategy development, those who are into project formulation, I think all those people have to realize that despite tremendous work which they are doing, India has been doing great work. I think there is no reason to, find faults. And right in the beginning, Sanjay pointed out about G20. G20, there was no track on disaster risk reduction, you see. But this time, under the leadership of India, भारत की leadership में G20 में ये disaster risk reduction का एक ट्रैक बना और उस पर डिस्कशंस हुए सी, और उसको डिक्लेरेशन में we have included it in the declaration. So, but then all these people, and we included, we have to realize
there is a huge disconnect with what we call the citizens, common citizens, the common man out there. How do we bridge this gap? That is a huge challenge we have. Even now, I do not know if we are able to demystify and simplify the write-ups in our magazine. But more stories we have. जितनी कहानियां होंगी, जितने अनुभव होंगे, जितने कविताएं होंगी, जितने इलस्ट्रेशंस होंगे, जितने पेंटिंग्स होंगे, जितने कॉमिक स्ट्रिप्स होंगे, I think those are also the processes of demystifying and simplifying. You see, just look at it. Dr. Gauri Shankar, a Sri Lankan who doesn't know Hindi, but sitting in Brisbane, he is able to understand, everything which Aparajita, presented. So I think we have to take these lessons. So with these words and with my apologies to everyone who wanted to participate, and thanks, my thanks to everyone who presented, and thanks to everyone who is continuing to to participate even after 2 hours on a Saturday weekend. So thanks to all of you, and I appeal to all of you to kindly become ambassadors and change agents and heroes of disaster management like Saki is doing. She's in a remote corner district of Jharkhand, but she's a great support. She's always contributing. She's always, in touch with me, and she brings more friends, etc. And we want to connect with lot of Sakis, women who are part of Jivika, young boys and girls who are in Scouts and Guides and NSS, etc., etc. You see, and NCC, and we are continuing in those efforts. Civil defense, you see, volunteers. So any help in this regard will be most welcome. So with these words and my apologies that we are not able to take more questions, I want to say thanks to everyone, my team KDM, we say, No Disasters Magazine, Akanksha, Altamas, Fariha, Komal, Vandana. Sir, 1 minute, sir. नहीं अभी हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो इसलिए नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार. हम लोग And sir, one more very dialogue. We will continue with the dialogue. That is my promise. Okay, no worries. Okay then. Namaskar. Thank you, sir. With the permission of the chair, Shri Anil Kumar Sinha sir, we hereby close the event. Anil Sinha sir, shall we close? Thank you.